In the last few classes, we had started off with the chapter Financial Markets, and I had completed the concept of financial markets. Then फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है जहां आपका मनी रोटेट होता है, the place where the money we can procure the money as well as the money is rotated. दोनों चीजें साथ में चलती हैं जहां आपका क्रिएट होता है. सो इसमें हमारे पास जो है, एंड नाउ व्हेन वी से मनी रोटेट होता है, तो द नेक्स्ट वन कम्स इज की फॉर व्हाट डू वी रिक्वायर दीज मनी. हमें ये पैसे किसके लिए ज़रूरत पड़ते हैं? तो इट इज़ ऑब्वियस, वी रिक्वायर मनी फॉर आवर long term capital as well as for our short term capital. And then once when we say long short term, so we have certain money market instruments which includes your commercial paper, commercial bill, this CD, that is certificate of deposits, then treasury bill, call money. Then secondly, we also have the secondary market. And secondary market का मतलब है, because the first is, then आता है capital market, I'm sorry, capital market. कैपिटल मार्केट के अंदर हमारा आ जाता है फर्स्ट, जहां पर हम अपने शेयर्स को we are floating it in the market where there is a direct interaction between the company and the consumers. अगर आप लोगों ने संडे का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो यू मस्ट हैव सीन LIC is going to dilute 9 to 10% of its stake to the public. So now when they will be going through, अभी पिछले 2-1.5 से this has been in the news because they needed this much of time and there are so many formalities. Now by March or I think in April that would be there. So then that means LIC is the one which is communicating to the consumer. Once these securities are issued, certain times it may be equity shares, sometimes it may be debentures or bonds. Once they are issued, then we can, अब मैंने खरीद लिया है but now I want to sell it off. Then where I would go, कहाँ मैं जाऊंगी? पहले क्या होता था, हम लोग जो है हमारे स्टॉक ब्रोकर्स होते थे, हम उन्हें बोलते थे कि भाई हमारा मतलब कि हमें खरीदना है या बेचना है. नाउ इट वाज अ स्टॉक ब्रोकर हु हैड मोर रोल, एंड व्हाट ही वुड डू इज ही वुड बी द वन जो कि मार्केट में हमारे बिहाफ पर जो है, इवन नाउ ऑल्सो वी हैव दोज स्टॉक ब्रोकर्स, बट नाउ देर इज अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म ऑल्सो. एंड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्लेटफॉर्म है जहां पर वी कैन सेल और बाय, बट नाउ वी ऑल्सो हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. स्टॉक एक्सचेंज हमारा जो है दैट वाज established long before, but now we are having certain regulations also which are now in the interest of the investors. नाउ व्हाट, ये हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज. आपको खरीदना है या बेचना है, दैट इज इजी. देन हाउ कैन वी प्राइस? अब मैं तो अपने कंपनी का सबसे ज्यादा बोलूंगी, आप अपनी कंपनी का सबसे ज्यादा बोलोगे, तो हाउ कैन वी हैव अ प्रॉपर, एक प्राइसिंग कैसे होगी? and that depends on the economics theory, demand and supply. So there is one platform, SEBI, sorry, stock exchange जो है वो इस चीज को देखता है that the pricing is not exaggerated. It cannot be completely, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, but yes they try to. Then it is also the safety of transactions. As I said, that in the earlier period the stockbrokers used to dupe us.
हमें नहीं पता क्योंकि हम मार्केट्स में इतने नहीं हैं, तो हमने तो उनको दिया हुआ, तो नाउ दे मे ड्यू पास, वो हमारा कभी कभी जो है ज्यादा और कभी कभी कम में बिक जाता था. बट नाउ देयर इज अ सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑल्सो. वी कैन नॉट लूज अवर मनी जैसा हम करते हैं. देन एवरी action taken in a financial market is contribution to the economic growth. क्योंकि एक जो कंपनी रजिस्टर करती है, जो कंपनी अपने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करती है, दे आर एबल टू गेट द मनी. On the other hand, because there is one platform, there is somebody who is looking after our investment, so it is also safe for us. Now more and more people are contributing, and that is helping in the overall economic growth. It gives new issues, old issues, better practicing of trade. हम अगर फॉलो करते हैं तो दे ऑल्सो गिव अस मेनी न्यूज, दे गिव अस मेनी आइडियाज, दे गिव अस मेनी टिप्स एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ स्पेकुलेशन. अब ये जो करने वाली हूं मैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज वन क्वेश्चन which has come in the 5 marks many a times. नाउ व्हाट इज, हाउ डू वी ट्रेड. अब आपको खरीदना है या आपको बेचना है. ट्रेडिंग मीन्स यू कैन इवन सेल आउट और यू कैन बाय. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ ब्रोकर. देर आर पीपल, देर आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट वो है जिसके थ्रू आप खरीदोगे बेचोगे, लेकिन उसको चलाने वाला आपका एक ब्रोकर होगा. सो यू शुड गो फॉर अ ब्रोकर and then you will be signing a broker client registration, and then उसके अंदर पैन जो है, that is your permanent address, जो permanent account number is mandatory. और एक कई बार पेपर में आया कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो मैंडेटरी नहीं होता. then your date of birth, your educational certification, because you don't need all these things. Buying and selling can be done by anyone. देन योर डिटेल्स, आपने किसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोला है वो, एंड देन अगर और कोई ब्रोकर भी है तो वो, एवरीथिंग. देन यू हैव ओपन योर डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट इज नाउ अ मैंडेटरी अकाउंट, डीमटीरियलाइजेशन, जिसके अंदर आपके जो शेयर्स हैं now they would be visible electronically. You don't have any paper or physical form. आपका कोई पेपर या फिजिकल फॉर्म नहीं होता. We have DSLs and we have CDSLs, that is National Security Depositories, या फिर आपके सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं, आप कहीं पे कर सकते हो. अब you have opened it, आपने अपना डीमैट अकाउंट बना लिया है. अब आप अपने ब्रोकर को बोलोगे that you need to buy or sell shares. Now you have a मतलब कि regular interaction with your broker. अब आप उसको बताओगे कि भाई अगर LIC का निकलता है, now we all know the bandwidth, हम सबको पता है उसका IPO जो फर्स्ट निकलता है, और जो पुराने होते हैं उनके we can see the performances on our computer also. Now we come to know कि इस particular कंपनी का जो शेयर है वो 2000 का है. नाउ वी वांट कि हम 2000 नहीं, जब 1500 हो तो मैं खरीदूंगी. तो नाउ यू विल टेल हिम इन द क्लियर इंस्ट्रक्शन कि इस कीमत पर अगर आ जाए देन आई वुड लाइक टू बाय इतने शेयर्स. अब आपने उसे बोल दिया मुझे 100 शेयर्स खरीदने. नाउ द ब्रोकर विल गो, उसके पास आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नंबर है, आपके बैंक डिटेल्स हैं. देन ही वुड बी देयर, ही इज ऑलवेज देयर ऑनलाइन. हम लोग नहीं ऑनलाइन कर सकते हैं. एंड प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं कि हम खुद नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो खुद करते हैं. मतलब कि दोज पीपल हु आर वेल अवेयर विद द स्टॉक एक्सचेंज स्कीम्स,
दोज हुआ वेल एक्सचेंज, मतलब कि है देर आर सो मेनी पीपल हु डू, बट मे बी हमारे पास टाइम नहीं है, तो यू टेल हिम दैट मेरे बिहाफ पर यू विल बी बाइंग दिस मच ऑफ। तो जैसा ही उतना प्राइस आया, अगर आपने खरीदने को बोला तो वो खरीदेगा, अगर आपने बेचने को बोला है तो वो बेचेगा, तो वो ब्लॉक कर देगा। पहले वो क्या करेगा, ही विल बी ब्लॉकिंग दैट। नेक्स्ट इज, अब आपके पास मतलब ब्रोकर के टर्मिनल में इट वुड बी कमिंग दैट ये जो है आपका ब्लॉक हो गया है, देन द ब्रोकर विल इश्यू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। जब उसके पास मैसेज आता है तो वो मैसेज को कंज्यूमर को पास कर देता है दैट इट हैज बीन डन। द नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, मतलब पूरा हो गया है। नाउ द ब्रोकर विल बी हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड उसके अंदर आपका जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं या बेचे हैं, किस प्राइस पर खरीदा, किस दिन खरीदा, किस टाइम पर खरीदा, एंड व्हाट विल बी द ब्रोकरेज चार्जेस लाइकली, इट ऑल इज प्रिंटेड। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, सिंस अगर कभी ब्रोकर या फिर इन्वेस्टर पीछे हट जाए तो दैट कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट। अब द शेयर हैज बीन बॉट, अब हमें क्या करना है, हमें पेमेंट देनी है और अपने शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट के अंदर लेकर आना है। हाउ, नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड, मतलब अगर आप बेच रहे हो तो शेयर्स दे रहे हो, और अगर आप खरीद रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो। सो दिस शुड बी डन आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज, और इसको हम बोलते हैं पे इन डे। जिस दिन हमने पे किया, पे इन डे। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद द पे दैट वी गेट इन आवर सैलरी, ये स्टाफिंग का नहीं है, ये फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन है। पे इन डे इज द डे व्हेन वी आर बाइंग और सेलिंग आवर शेयर्स, जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट दे रहे हैं। देन when the cash is paid और securities are delivered to the stock exchange, या तो हम खरीद रहे हैं तो हम कैश दे रहे हैं, और अगर हम बेच रहे हैं तो हम अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं टू द स्टॉक एक्सचेंज। उसको हम मतलब कि विच इज बिफोर द T+2 डे, टी मतलब कि ट्रेडिंग प्लस 2 यानी कि 2 दिन के बीच में आपको सेटलमेंट करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। T+2 डे किसको कहते हैं, द सेटलमेंट डे इज ऑन T+2 डे, यानी कि आपका जो है 2 दिन लग जाता है। जिस दिन आपने ट्रेडिंग की, जैसे प्लेसिंग एन ऑर्डर किया आपने, उससे 2 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू ईदर डिलीवर द शेयर्स और यू हैव टू गिव द मनी। ऑन द T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर, अगर आपने खरीदा है तो शेयर देगा हमें, या फिर इफ वी हैव सोल्ड तो वो मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, और उस दिन को हम कहते हैं पे आउट डे, यानी कि हमारे पास शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में इट विल बी रिफ्लेक्टिंग, या अगर हमने बेच दिया है तो हमारे उसमें से बैंक में पैसा आ जाएगा। The broker will make delivery of shares in DMAT form directly to the investor's DMAT account. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ सिंपल वे यू हैव टू चूज अ ब्रोकर, आपको रजिस्टर करना है अपने नाम मतलब कि अपने सारे डिटेल्स को, देन वेन एवर यू फाइंड, ऐसा नहीं कि मैंने आज रजिस्टर किया तो मैं कल ही देना शुरू कर दूंगी, मे बी आफ्टर 6 months आई मे स्टार्ट। तो द डे आई हैव गिवन, मैं जिस दिन उनको दे देती हूँ, ही विल गो टू द टर्मिनल, ही विल मैच द प्राइस, और अगर मतलब कि प्राइस मैच हो गया है तो ही वुड एग्जीक्यूट, दैट इज द टी डे, दैट इज द ट्रेडिंग डे, उस दिन उसने खरीदा या बेचा है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है ही हैज टू इश्यू मी द कॉन्ट्रैक्ट and then I have to make the payment or the shares, so that will be taking a cycle of T+2, and when the final
payment is made and the shares reflect in our demat account, or we have sold and the money has come, उसको हम कहते हैं pay out date. This is how the procedure is followed. I would request that इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद करोगे, because this may come in your paper. इसके आपके दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, which I had discussed in the last class also, that you may be having एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है कि explain the procedure, आठों के आठों आपने लिखने हैं, और the second may be that you are given a case study कि he is doing this, उसका पहला उसने he has selected the broker, he has also signed the contract. अब नेक्स्ट के 5 स्टेप्स लिखने हैं, 3 4 5 6 7 8 आपको जो लिखने वो बताने, तो देन यू नीड टू राइट ऑल दोज थिंग्स. या ऐसा आ सकता है कि आइडेंटिफाई द 3 स्टेप्स उसने जो कर लिए हैं, एंड नाउ फॉलो, मतलब कि उसके फॉलो अप क्या क्या रहेंगे. रिमेंबर यू हैव टू राइट इट इन सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते. This is important question of this chapter. Now the next is SEBI. अब stock exchange, it is the one where we sell out. हम इसको हिंदी में एक ज़माने में दलाल स्ट्रीट भी कहते थे, और अभी भी जो बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है उस एरिया का नाम दलाल स्ट्रीट है. The reason is कि पहले यहाँ पर जो ब्रोकर्स होते थे, they used to have the play. But for the past few years, there has been an increase, a drastic increase in many fraudulent practices. And these fraudulent practices जो है, they are not from the broker side. They are from the broker side. They are from the investor side. They are from the company side. I've been again and again telling you that आप लोग जो हो, if you go to the अगर आप लोगों ने गुरु मूवी या फिर आपने स्कैम 92 देखा होगा, तो you will see that how they could rig the prices. जैसे उसके अंदर ACC सीमेंट का दिखाया था, तो प्राइस को वो लोग कैसे रिग कर देते, एकदम ऊपर चढ़ा देते. दिस इज वेरी पॉसिबल. सेकेंडली क्या होता है, वो तो अभी भी होता है, एंड सेकेंड वाला भी अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, बट येस द एक्सटेंट इज लेस नाउ. इनसाइड प्रैक्टिसर, अब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे अभी मतलब कि आई हैव जस्ट अटेंडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, और मुझे पता लगा मेरी कंपनी के शेयर्स जो है वो गिरने वाले हैं, क्योंकि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही बुरा था. अब मैं क्या करूँगी, आई हैव सम शेयर्स, आई वॉन्ट टू, मतलब कि मैं जो हूँ उसका नाम क्या है, बेचना चाहती हूँ, या मुझे पता है कि कंपनी के शेयर्स गिरने वाले, तो मैं खरीद के रखना चाहती हूँ. एज अ प्रोफेशन, एज अ डायरेक्टर, आई एम नॉट अलाउड. तो मैं क्या करूँगी, आई विल बी डायरेक्टली आस्किंग समवन, मेरी फैमिली में किसी को बोलूँगी कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम खरीद के रखो. एंड देन व्हाट विल हैपन, I'll buy it, and when जब भी मेरे को फायदा मिलेगा मैं बेच दूंगी. This is insider practice, and this is very very common in the corporate scenes. These are very common. अभी भी होता है, पता लग जाता लोग खरीद लेते हैं. ऐसे जैसे अभी the people, those who are watching, those who are must have watched this Shark Tank, जो उसके अंदर एक इन्वेस्टर आया था अशनीर, ही इज अंडर प्रेशर टू लीव द कंपनी. तो इनफैक्ट आई वाज, मतलब कि आई वाज रियली शॉक्ड कि जिस इंसान ने अपनी कंपनी को बनाया, दैट पर्सन इज आस्क्ड टू लीव द कंपनी.
No, it is not like that. Sambhav, wait. Don't go for the gossiping factor. Just go into the uh, reality factor. तो अब आई वॉज डूइंग वन, मतलब कि मैं एक कंपनी सेक्रेटरी का मतलब कि आई हैड एनरोल माई सेल्फ, तो मैं उसमें पढ़ रही थी द डायरेक्टर्स ऑल्सो आफ्टर सम एक्सटेंट डोंट हैव द पावर्स, और उन्होंने अगर अपना स्टेक, अपना जो 100% था, लेकिन धीरे 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 वो अपने 100% को दे सेल इट आउट एज इक्विटी शेयर्स. तो एट टाइम्स इफ दीज डायरेक्टर्स कमिट सम मिस्टेक्स, तो दे हैव टू पार्ट अवे विद देयर इक्विटी शेयर्स. तो अब जो दूसरे लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, नाउ दे वांट, अभी तो उसको उनको ही हैज बीन गिवन अ हॉलीडे सो दैट द इन्वेस्टिगेशंस आर इन द प्रॉपर मैनर, क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर नहीं होगा. नाउ इन्वेस्टिगेशंस के साथ में इट इज ऑल्सो रिवील्ड कि यस ही वॉज इन्वॉल्व इन सम माल प्रैक्टिसेस. तो अब उसको बोला जा रहा है कि आप अपने शेयर्स से पार्ट अवे करो. तो नेचुरल है कि जो इंटरनल लोग हैं दे वांट कि वो लोग उस शेयर्स को सस्ते में खरीद लें. मार्केट में आएगा तो वो महंगा होगा. तो सर्टेन टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन द कंपनीज इनसाइडर्स, लाइक आपके इन्वेस्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोई भी है जिनको अंदर से पता है कि शेयर्स अभी बढ़ेंगे या फिर कम हो जाएंगे, तो दे टेक द एडवांटेज. तो ऐसे माल प्रैक्टिसेस होते. थर्ड, कभी कभी हम कंपनी को बेच रहे होते. अब कंपनी को बेचने का मतलब जरूरी नहीं है कि द कंपनी इज गोइंग इनटू लॉस. सर्टेन टाइम्स इट इज इनफैक्ट अ प्रॉफिट ऑल्सो. आपको पैसा मिल गया, आपको 4 साल और लगाना था, आपको पहले से ही पैसा मिल गया, आपने बेच दिया, आप दूसरे बिजनेस पे चले गए. बट व्हेन द कंपनी इज बीइंग सोल्ड, तो नेचुरल है कि एक कंपनी उसको खरीदेगी. अब उसको उस अंदर कंपनी के अंदर क्या गलत या सही हुआ है ये नहीं पता होता है. सो टू ऑल्सो ये भी एक मॉल प्रैक्टिस होते हैं बाय द कंपनी. सो कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, देर आर मेनी माल प्रैक्टिसेस. तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो मतलब कि हमारा एस्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज टू कंट्रोल द प्राइस. The companies used to just exaggerate their prices, क्योंकि उनको नहीं पता था क्या करना है. दे वुड बी ओनली डेप्यूटिंग द लोकलाइज ब्रोकर्स. और पहले अगर आप स्टॉक ब्रोकर्स कभी भी देखना, कोई ब्लैक एंड व्हाइट का देखना, यू विल फाइंड दैट पीपल यूज टू स्टैंड ऑन द टेबल एंड दे वुड बी शाउटिंग. नाउ इट इज, अभी भी एक टाइम ऐसा ही था जब बहुत भीड़ भाड़ होती है. अभी भी अगर आप स्टॉक एक्सचेंजेस में जाओगे तो आपको भीड़ मिलेगी. But now everything is, connected to a terminal. You can see everything on the LED screens properly. तो अब इन चीजों पर how to, it is same like auction. In fact, it is. तो now who is going to look after this? इसके लिए आपका जो सेबी है, और ये हुआ भी स्कैम 91 जो है उसके बाद हुआ था. ये हुआ भी उसके बाद ही था. तभी आपका सेबी जो है उसको किया गया था कि कैसे किसी भी कंपनी का, जो पहले कल तक जो कंपनी का नाम नहीं जानते थे, अचानक से दैट कंपनी शेयर्स वर देयर एंड सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड. How it was established? This was the way, because there were many kind of what we call as malpractices. So the overall objective of SEBI is to protect the interest of investors, to promote the development of and regulate the security markets. क्योंकि ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस है, कोड ऑफ कंडक्ट है. देन आपके ब्रोकर्स जो कि गलत काम करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स गलत काम करते हैं, जैसा उसमें दिखाया था कि बैंकर्स जो हैं दे जस्ट टेक इट. तो वो सब चीज़ों को जो है ख़त्म करने के लिए सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड. अब ये जो 3 मैंने डाले हैं सामने आपके, दैट इज प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शंस. These comes as identify and explain.
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आपके तीनों आते हैं. दैट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी. द वेरी फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव. आपको बहुत, तीनों को पढ़ेंगे ना तो यू विल फाइंड दैट समवेयर तीनों जो है लिंक्ड है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. प्रोटेक्शन मतलब गिविंग द प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स. डेवलपमेंट मतलब जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो है हेल्प करना. एंड रेगुलेशन मतलब कुछ ऐसे लीगल लॉस जो है उनको लेकर आना जिसे फॉलो अप किया जाए. प्रोटेक्टिव means, as I said, fraudulent, unfair practices like misleading statements, manipulations, price rigging, insider trading. ये बहुत कॉमन है. ऐसा नहीं है कि सेबी हैज कंप्लीटली, अभी भी पीछे आई डोंट नो 2 कंपनीज थी जिनमें इनसाइडर्स ट्रेडर्स के लिए दे वर पेनलाइज्ड, उनको पेनलाइज किया गया था. या stopping illegal activities during share, yeah, the entire process, not only during IPOs, जनरल में भी. अब हमें क्या पता है कि हम देखो, हमने खोला ओके, इस कंपनी के प्राइस उस वक्त में इतने ज्यादा है. फिर 4 दिन बाद हमने खोला, हमने देखा और ज्यादा हो गए. अब हमें तो नहीं पता ना कि वो ज्यादा कैसे हो गए. एज अ कॉमन इन्वेस्टर मुझे तो ये लगेगा कि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, बट ये एक्चुअल में दीज आर ऑल सम टेक्निकल वर्क विच इज डन. जैसे हम मार्केटिंग में करते हैं ना, मार्केटिंग इज वन ऑफ द, या सेबी इज गवर्नमेंट. मार्केटिंग में होता है ना कि किसी भी चीज के डिमांड को इनऑर्गेनिक तरीके से क्रिएट करना. आपको जो चीज जो है विच इज योर नीड, विच इज योर वांट, उसको नीड बना देना. अगर ये चीज नहीं होगी तो आप ये नहीं कर सकते हो. तो they sometimes make that. So those unfair trade practices को protect करना so that investors are not duped. Then if they find this insider trading I just explained, जब आपका जो है कोई भी कंपनी होता है, when it is going to get its publish its balance sheet, तो उससे पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होता है उसमें उनको पता लग जाता है that what is the performance of the company. So that at that time the insiders take the advantage. उसको रोकना. then investors के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी and fair practices, because that period scam 92 वाला जो पीरियड है ये उसी वक्त हुआ था, इसीलिए आई हैव टू टेल दैट एग्जांपल टू यू. उस वाले पीरियड में many of the people had lost lakhs of rupees. That was a period when economically, even though हम लोग नई चीजें लेकर आए थे, पहली बार हमें पता लगा था हम जैसे कॉमन लोगों को कि what is the meaning of shares. But at the same time, अगर हम लोग जो है वी आर नॉट केयरफुल, देन इट इज वेरी वेरी इजी टू ड्यूप अस. आई ऑल्सो गेट सो मेनी ऑफर्स आपके होते हैं, बट आई डू नॉट इन्वेस्ट इन एवरीथिंग. आई एम वेरी वेरी केयरफुल. मैं 100 में से सिर्फ एक में देखूंगी, एंड दैट टू आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मुझे कहाँ किस लिमिट तक अपने पैसों को रखना, उसके बाद मुझे कैसे री इन्वेस्ट करना. तो in fact my family always takes a suggestion from me. In fact my husband is a finance one, but still he will say नहीं तुम मुझे बताओ तुमने कहाँ तक किया था, because I am very particular. मैं बहुत लालच नहीं करती. पता लगा लालच के चक्कर में वो जो थे वो भी खत्म हुए. तो we have to be very careful, but we have to be informative also. केयरफुल होना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता. जब मुझे पता ही नहीं होगा कि उस फील्ड में क्या हो रहा है तो हाउ कैन आई, तो आई हैव टू बी, वी हैव टू बी इंफॉर्मेटिव. और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको सेबी देता है. डेवलपमेंट,
अब जो लोग उसमें काम करते हैं, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, नो, संभव आई एक्सप्लेन लेटर। डेवलपमेंट जो होता है दैट मीन्स आपके जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि आपके बैंकर्स, आपके अंडर राइटर्स, आपके ब्रोकर्स, ये सब जो हैं दे आर द पार्टिसिपेंट्स, दे आर ऑल इन्वॉल्व। पार्टिसिपेंट मतलब दे आर ऑल इन्वॉल्व। तो इनको जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना पड़ता है। समटाइम्स दे मे नॉट बी नोइंग, they have to tell about the flexible approach, they have to tell about the information उनको जो है, and this information can be collected worldwide। यूएस में कैसे इसको डील करते हैं, जैसे देखिए आज से कई सालों पहले एडीआर्स एंड जीडीआर्स वर नॉट सो कॉमन इन इंडिया, मतलब कि हम लोगों को नहीं पता था व्हाट आर जीडीआर्स, व्हाट आर आईडीआर्स, बट नाउ इट इज इजीली हम लोग आइडियाज या जीडीआर्स को हम लोग खरीद या बेच सकते हैं। अगर हम कोरा पढ़ते हैं, if any one of you is following Quora, you will see number of people who are investing in GDRs also. But how? जो लोग इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं उनको टाइम टू टाइम दे हैव टू बी गिवन, अदरवाइज हो सकता है कि इट मे लीड टू अ बेटर, मतलब कि अ मेजर फ्रॉड। थर्ड इज रेगुलेटरी, यानी कि कुछ रेगुलेशंस बनाने। पहले देयर वर नो रेगुलेशंस, ब्रोकर्स अपनी मर्जी से एग्जैजरेट करते थे, एक ब्रोकर एक चीज का दाम एक बताता था, दूसरा दूसरा बताता था, बट नाउ इट इज नॉट देयर, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी। आपका डीमेट अकाउंट बना चुके हो तो यू कैन नॉट यूज योर शेयर्स इन अ रॉन्ग मैनर। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर्स, आपको जिस ब्रोकर के साथ आप काम करते हो दैट पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड विथ एनी वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी में। He should also have registered with mutual funds. Now the question comes, are mutual funds and shares one? No, not at all. म्यूचुअल फंड्स आपके जो है मिड टर्म कैप्स में आ जाते हैं, जिसमें हम अगर पैसा जमा करते हैं, नाउ देयर आर डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, इट कैन बी सिप और इट कैन बी अ लमसम अमाउंट, एक ही बार में मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए, या हो सकता है मैं महीने महीने लगाती हूँ। नाउ दिस इज यूज्ड बाय द बैंक्स, और जिसके थ्रू मैं म्यूचुअल फंड ओपन कर रही हूं, वो इसको, अगर आप म्यूचुअल फंड का एक पेज खोलोगे तो उसमें होता है अल्ट्रा, देन मिड, देन स्मॉल कैप, ऐसे करके, तो वो कितने पीरियड के लिए वो यूज करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न्स आपके इमीडिएट होते हैं और काफी अच्छे होते हैं, लाइक अच्छे मतलब कि म्यूचुअल फंड्स आपको 20% तक देते हैं, बट शेयर्स आपके होते हैं विच आर मतलब कि आपका जो है दैट इज विच इज अ काइंड ऑफ कैश दैट यू हैव केप्ट, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। बोथ आर नॉट द सेम। तो उसके लिए एज आई सेड यू हैव सब ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजर्स, इन सब का रजिस्ट्रेशन, उनके लिए रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड बाय कंपनीज। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनीज, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है। नाउ द कंपनी मे बी कंसीलिंग, चीजें छुपाई हो उन्होंने, तो इट इज सेबीज ड्यूटी टू फाइंड आउट कि जो कंपनी बेच रही है इट इज ऑन अ क्लियर टर्म। टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना, ये वाला पेपर में कई बार आता है, कई बार। विच फंक्शन, आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी। टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना, इन मतलब कि ऑडिटिंग करना एक स्टॉक एक्सचेंज की या फिर जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका, दिस इज ऑल्सो अंडर रेगुलेटरी फंक्शंस। देन ऑल दीज कैन नॉट बी कैरीड फ्रीली, तो जो आपके चार्जेस होते हैं वो करना, परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट 56 या फिर जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब उनके नीचे किया जाता है। सो दीज आर ऑल द परफॉर्मेंसेस, these are all the functions that are performed by SEBI. Now, in overall, what we have studied is in this chapter that financial market is a place where we are buying, selling, or helping the
फाइनेंशियल कंपनीज मतलब फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनीज. We as a small investor, we as a small consumer, we as a small savings bank account holder are responsible for the creation of the wealth in the country. एक हमारा हो सकता है हम सिंपली वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग एनीवेयर, आई एम अ सिंपल हाउस होल्ड होम मेकर, मैं नहीं कर रही हूं किसी में, तो मैंने कम से कम बैंक में पैसा रखा हुआ है. मतलब कुछ लोगों के जैसा नहीं, देयर आर पीपल हु डोंट इवन कीप इन द बैंक, बट I believe yes, it is true. My own sister doesn't keep anything in the bank. I used to fight with her. Fight मतलब I used to tell her कि you should keep your money in the bank and you should only, you know, spend the amount which you require. And you all will laugh if I tell you till date she doesn't have a debit card. Credit card तो बहुत दूर की बात है. And very very इससे भी ज़्यादा ये है कि no, neither she has GPay nor she has Paytm, nothing. Because एक बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि we were in the institute, I was sitting, she was also sitting, she was मुझसे वो किसी बात पे नाराज़ थी, मतलब उनका एक रूटीन होता था, and I was sitting outside. She received a call from somebody, fraud person, और वो उसे पिन मांग रहा था और मैं उसके सामने खड़ी होकर मैं उसे बोल रही थी कि पिन मत दो. She did not hear. She said तुम भाड़ में जा. एंड अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैं बाहर आई, आई कॉल्ड अप हर हस्बैंड, मैंने कहा हेमा ने ऐसे ऐसे कर दिया है, उसका जो है मतलब कि अगर उसके बैंक में चाहे कुछ भी हो वो उड़ जाएंगे. देन ही कॉल्ड अप एंड ही टोल्ड कि रमा हैज टोल्ड दिस थिंग, इज इट ट्रू? एंड शी सेड यस, आई हैव गिवन द पिन नंबर. ही सेड गो टू द बैंक एंड क्लोज डाउन. अब उसको बैंक में जाकर काम नहीं करना था. देन शी हैड टू गो टू माई होम. मम्मा उसका बैंक का देखती है काम, अभी भी मम्मी देखती है. माई मॉम इज 75 बट माई मॉम डज इट. वो जाकर उनके साथ जाकर उसने बंद किया. दैट इज वाई हस्बैंड डजंट अलाउ हर टू कीप अ पेटीएम और एनीथिंग. बट वी नीड टू बी अलर्ट, वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल. हमारे पैसों के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इन द अदर वे वी एज एन इन्वेस्टर हैव द, हम लोग जो है बैंक में पैसा रखते हैं, चाहे 50 रुपए रखें या 500 रुपए रखें. नाउ द बैंक, हमारे लिए वो 500 है, बट फॉर बैंक 500 जैसे 1000 लोग बन गए तो उनके लिए तो दैट इज 5 लाख रुपीज. सो दे वुड बी यूजिंग दैट मनी इन इन्वेस्टिंग. दूसरा हम लोग जो है दूसरा वी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट. सो जब हम मनी मार्केट कहते हैं तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते हैं. कमर्शियल बैंक, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल वगैरह जो है, दे आर ऑल डन इन द सेक्टर्स इटसेल्फ. बट जहां हमारा कैपिटल मार्केट आता है वहां पर एज अ प्राइमरी एंड इन द सेकेंडरी वी आर द इन्वेस्टर्स, वी आर द इन्वेस्टर्स. बट अब ये कहां खरीदा या बेचा जाता, वो आपका स्टॉक एक्सचेंज है. और स्टॉक एक्सचेंज को प्लस सारे के सारे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एस्टैब्लिश हुआ है आपका सेबी, दैट इज आपका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज आपका सेबी. एंड सेबी जो है इट विल बी गिविंग ऑल द नॉर्म्स, द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आप जो हो फ्रेमवर्क, कि आप किस तरीके से हाउ द दैट मीन्स डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन से भी परफॉर्म करती है. एंड इसके अंडर स्टॉक एक्सचेंज हैज टू वर्क. देन वी ऑल्सो लर्नड what is the procedure of buying or selling the shares on the stock exchange online platform. Earlier it was just कि आप गए, आपने किसी ब्रोकर को बोला भाई मेरे को 100 शेयर्स खरीदने हैं, एंड उस इंसान ने जो है आपको खरीद के, मतलब उसने बोला ठीक है इतना मेरा ब्रोकरेज चार्जेस है, आपने उसे पैसा दिया, आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट बन के आ गया. नाउ थोड़े दिन बाद आप उस शेयर्स को बेचने गए और आपको पता लगा कि वो जो शेयर सर्टिफिकेट था वो झूठा था,
वो सर्टिफिकेट था ही नहीं, वो तो किसी कंपनी के ऊपर उसने नाम के ऊपर नाम लिखा हुआ था. नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग. सो सच काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस वर वेरी कॉमन. कभी आपका शेयर, क्योंकि उसमें लिखा होगा बियरर, अब बियरर आप भी हो मैं भी हूँ, मेरे को मिल गया, मैंने आपसे छीन लिया, मैंने आपसे जो है चोरी कर ली. तो देन उस वक्त में क्या होता है, यू डोंट हैव एनी प्रूफ. तो नाउ फॉर ऑल दीज वी आर हैविंग, हमारा जो है वी आर हैविंग द प्लेटफॉर्म व्हाट वी कॉल एज ऑनलाइन. टू मेक एन ऑनलाइन ट्रेडिंग पॉसिबल वी नीड टू हैव, एक तो हमारा अकाउंट होना चाहिए डीमैट विद एनी डिपॉजिटरी बैंक, एनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अलॉन्ग विद अ सेविंग्स बैंक अकाउंट हमारा जो उससे जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आप पैसा अब कैश नहीं देते हो, एवरीथिंग इज इन द इलेक्ट्रॉनिकल मोड. देन यू ऑल्सो नीड टू सेलेक्ट अ ब्रोकर जो कि आपको आपका ये सारा काम जो है वो करेगा. वंस यू टेल हिम, वो आपके साथ में, आपने उसको रजिस्टर किया, उसका आपके पास पूरा प्रूफ होता है. एंड देन वंस यू टेल हिम दैट दिस इज द अमाउंट आई वांट टू इन्वेस्ट, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स आई वांट टू बाय, और दिस शुड बी द अमाउंट जिस पर आप शेयर खरीदोगे, इसमें इतने रुपए आगे या पीछे हैं तो खरीदना, उसके आगे नहीं. तो ऑन व्हेन द अमाउंट रीचेस द सेकेंडरी मार्केट ही वुड ब्लॉक इट, दैट इज द ट्रेडिंग डे. फिर वो उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा, उसके बाद दैट शेयर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड टू यू. तो आपको शेयर्स मिलेंगे तो आप पैसा दोगे, तो ये सारा आपका T+2 के अंदर जाएगा. और जिस दिन आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा उसको पे आउट डे बोल देते हैं. सो दिस इज हाउ स्टॉक द कैपिटल मार्केट और द फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क आउट इन अ कंट्री. हाँ, हर कंट्री का जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो थोड़ा अलग होता है, बट देन more or less it is the same. For the past few years definitely जो हमारा मतलब कि शेयर मार्केट है, that has really caught a good catch. मीडिया कह लो आप, नेटफ्लिक्स की मूवीज आप कह लो, या फिर सेबी का जो परफॉर्मेंस है वो कह लो, एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अगर आती है तो नेचुरल है कि दैट इज गोइंग टू improve the standard and the status of the country as well as the people. So this is why we read it in our financial market in business studies, क्योंकि आगे चलकर आप में से कोई ऐसा होगा जो फाइनेंशियल मतलब कि मैनेजर बनेगा. Some of you might be tomorrow, I might be seeing you somewhere in the financial market only. आप investment banker हो सकते हो. You might be working as a broker in some company, and broker is not a wrong word, it is a very good. जिनकी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज होती है ना, दे अर्न इन क्रोर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, most of them are from the you highly performed financial status. So some of you might be there. So these are the basics which we need to know before we venture out what is exactly finance is about. With this, the chapter will be ending.